for this conference is the challenges of academic governance, achieving excellence and equity in higher education. Learned Vice Chancellors, ladies and gentlemen, welcome to the third Vice Chancellors Conference, whose thematic focus is on an equitable, inclusive and sustainable future. कि जब हम 2% मिनॉरिटी के कोटे की बात करते हैं तो एक इशू आ रहा है और वो इशू ये है कि हमारे बहुत सारे जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं तो जो वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मार्क्स की यूनिवर्सिटी की तरफ से, अनफॉर्चुनेटली वो भी पूरा नहीं कर पाते। तो यूनिवर्सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, जो कि बिल्कुल जायज़ बात होती है, कि हमारा मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है उसको तो पूरा करें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर हम इस पर कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं या कोई हम उनको ये बात कर सकते हैं कि अगर वो पास हो जाएं तो उनको कंसीडर किया जाए, क्योंकि हमारी पिछले साल 2023 में 900 से ज़ायद सीटें वेकेंट गई हैं जो रिलीजियस मिनॉरिटी की 2% कोटे पे थी। उसकी एक वजह ये थी कि शायद बदकिस्मती से ये वाला तबका जो है वो मिनिमम मार्क्स भी नहीं ले सका। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शायद काबिल नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल कम है। जो हमारे 3 थीम्स हैं, जो इंक्लूसिविटी है, इक्विटी है, इक्विटेबल एक्सेस है टू एवरीवन, और इसके अलावा आपका इंटरफेथ हार्मनी है और क्लाइमेट चेंज है। इन तीनों बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर जब हम शाम को जा रहे होंगे तो वी विल बी मोर अपडेटेड, वी विल बी मोर enthusiastic, and once again thank you very much Pargat for sensitizing us as well and having such a wonderful collaboration. Thank you very much. Let me first appreciate the efforts of Punjab Higher Education Commission and Pargat to organize this conference on a very important issue that is facing higher education in Pakistan. This session of the conference specifically considers inclusion and diversity with special emphasis on 2% minority education quota in higher education. Mostly we all know that in my perspective or experience, the awareness about these seats is not at the level as it should be. जो ये कम्युनिटीज़ हैं उनको पता ही नहीं है कि इस तरह का कोटा मौजूद है। But now how to do that? You are making a recommendation. Most probably at government level, in media, using social media, universities, social media, where admissions are announced, this should be widely, this information should be widely spread. At the same time, should offer not only this seat but scholarship also, because there is a hesitation from the marginalized community going for the education because of the expenses, because of the other issues. We need to invest more to make them, to create attraction in getting in higher education. In my experience in Gujarat University, I never found anybody from minority who wanted to have admission and didn't get it. They don't apply, they don't have enough candidates to come forward. So, as Baqir Sahab said, it's not enough to have quota, it should be accompanied by fellowship, scholarship, financial aid. Then we might attract people to come forward. We need to have a report where the minorities have been denied admission because of lack of seats. Most probably, if at all possible, it could be a medical college where you have some possibility. But I want to understand where are the number of seats, where are they applied and not been qualified and not been admitted. तो मेरी रिक्वेस्ट होगी इस फोरम से जो वाइस चांसलर से बैठेंगे कि सारी वेबसाइट मौजूद है, सबके इश्तिहार आते हैं, तो उसकी ये बात लिख दिया जाए कि 2% मिनॉरिटी का एडमिशन कोटा है, तो आई गारंटी हूँ कि आपका 90% फिल हो जाएगा, कोई इशू
तो मसला ही नहीं था। दूसरा इसके लिए ये था कि हमने कोशिश की थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस किया था कि उनसे रिक्वेस्ट की उस वक्त के वाइस चांसलर साहब से, उन्होंने खैर मेहरबानी की, उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स चेयर वहाँ पे एक नोटिफाई कर दिया। तो बाकी यूनिवर्सिटी भी ये कर सकती है, जो एक फोकल पॉइंट बन सकता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, उसके जरिए आप ह्यूमन राइट्स के इशू, इंटरफेथ के इशू और ये माइनॉरिटीज़ के, ये जो कोटाज के इशू, ये सारे हम उनके साथ अच्छे तरीके के साथ इसको आगे लेके जा सकते हैं। ये हमारा इतनी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन है कि हम इनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, हम इनको अपना डोमेस्टिक सर्वेंट तक नहीं रख सकते। तो जब आप इतने मार्जिनलाइज्ड एक कम्युनिटी को कर दोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो हायर एजुकेशन की तरफ आ पाए। तो ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, ये है कि उनको बहुत बहुत स्टेजेस में उनको इस तरह दबाया जाता है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी हर जगह रिस्ट्रिक्ट होती है। तो इस तरह तक आना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं। So, perhaps it would be a good idea to start established office of inclusion and diversity at the university, which will also do trainings, but will also facilitate it. So, thank you very much. हम सोसाइटी के वो लोग हैं जिन्होंने इस सोसाइटी को बनाना है। अगर हम थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करते हैं तो इनको एक अच्छे रोल मॉडल्स मिल जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को भी और सोसाइटी को भी, और इनके लिए एक अच्छी सपोर्ट क्रिएट हो जाती है। लेकिन हम सब यूनिवर्सिटी के लोगों को भी हमें उन कम्युनिटीज़ में काम करने की जरूरत है शुरू में, और उनको इस तरह ट्रेन किया जाए कि आप हमारी जो कम्युनिटी में जो टॉप टियर प्रोफेशंस हैं, जिसमें मेडिकल है, जिसमें सिविल सर्विस है, जिसमें यूनिवर्सिटी के साथ है, उसमें आने के लिए एस्पायर करें। स्कॉलरशिप का मेरा ख्याल नहीं कोई इशू है, अवेयरनेस पे अब उस लेवल की कोई इशू नहीं है जिस तरह हम समझते हैं कि पहले बच्चों को पता नहीं है। अब जो बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेते हैं उन्हें वाकई ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट होती है सभी लोगों को, काफ़ी हद तक है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग करने की जरूरत है। जो स्कॉलरशिप आपकी मिनिस्ट्री दे रही है, पीफ दे रहा है, और बाकी जो एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड दे रहा है, वो अभी इनफ है। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है 18 मई 2020 का, इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं उनके बच्चों को 2% कोटा रिलीजियस मिनॉरिटीज बेसिस पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए। HED का यह नोटिफिकेशन है। The environmental policies at the academic institutes, that is very important. So we are always using this single plastic use. So I believe that charity begins at home. So I have taken an initiative at our university that I have replaced this plastic bottle with a glass bottle. So see, if you will not take practical steps to sensitize, and we are always drinking water from these plastic bottles where the government has put a ban on the single plastic use. जब हम बात करते हैं सैलाब की, जो कि रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन से बना है, ये सैलाब सारे पानी से नहीं आते, ये सैलाब बहुत सारे गलत इंफ्रास्ट्रक्चरल डिसीजन मेकिंग से आते हैं, और जब उनसे लाखों न्यू प्रेगनेंसीज सैलाब के पानी में हो रही होती है, तो देन ये एक डॉक्टर का इशू है, ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है। सो दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द सोसाइटी, जिसमें ग्रोथ को और ग्रोथ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ को, एनर्जी के ग्रोथ को
पानी के हवाले से पाकिस्तान से इतने इश्यूज नहीं हैं जितने बैनुल मसालिक पानी के हवाले से। पाकिस्तान साड़ा मुल्क है, असी इस मिट्टी के तले हुए हाँ, ये भी साड़ी जन्मभूमि है, सानू मान है कि आप पाकिस्तान वासी असी फख्र महसूस करते हैं कि असी इस देशवासी हाँ जिते मेरे सतगुरु श्री गुरु नानक साहब जी का जन्म स्थान मौजूद है। मामला को हर वक्त कंट्रोल न करने पर भी मामला खराब होता है। अगर मामले को मतलब समझ लिया जाए, देखा जाए और कंट्रोल किया जाए तो हो सकते हैं। लेकिन ये है कि ये मामला मैं नहीं समझता कि कोई मामला अब पैदा होता है। मेरा 50 साल का तजुर्बा ये है, मसाइल पैदा किए जाते हैं, तो पैदा किए जाने का थोड़ा अगर हम नजर रखें तो हम बहुत से मामला कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसके लिए हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम सिमिलैरिटीज पर, रिकन्सिलिएशन पर और प्रायोरिटीज में रहकर इन चीज़ों को भूल जाते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी वो जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसको अपनी हायर एजुकेशन में भी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि कुछ हमारे अपने बंदे उनकी मीडिया पे आके बात करते हैं तो ये पाकिस्तान हमारा घर है और हमने एक चीज़ की हिफाजत करनी और तालीम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है। मैं वाइस चांसलर हूँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का, और आज मैं ये वाइस चांसलर फोरम के लिए आया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी हेल्दी और क्रिएटिव एक्टिविटी है। ये बड़ा रेगुलरली होना चाहिए ताकि हम अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सचेंज करें, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हैपनिंग हो रही हैं, और वो जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो दूसरों को बताएं, अपने एक्सपीरियंसेस जो हमारे हैं वो शेयर करें हम बाकी वाइस चांसलर्स के साथ। डॉक्टर ज़रीन फ़ातिमा रिज़वी, जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की वाइस चांसलर। और जो इनका पहला सेशन था वो था माइनॉरिटी पे, कि माइनॉरिटी के जो हमारी कम्युनिटी है उनकी जो कोटा सिस्टम है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 2%, तो वो खाली रह जाती हैं। बाज़ यूनिवर्सिटी में फ़िल हो जाती है लेकिन मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटी में ये सीट्स खाली चली जाती हैं। तो इनको हम कैसे फिल करें, और ये बात हुई है यहाँ, और ये कि हम कम्युनिटी में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपनी वेबसाइट पे अपने मुख्तलिफ इर्द गिर्द इस बात को इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ कि इनकी 2% सीट्स है। लेकिन बहुत से लोगों की बहुत अच्छे व्यू थे इसमें। ये बहुत अच्छा था कि इनको स्कॉलरशिप दिए जाएँ ताकि वो सीट फिल्ड हों। ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है वाइस चांसलर्स की। जो पहली 2 थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स के साथ मिलके बरगद ने की थी जब मैं वाइस चांसलर थी, और अब ये तीसरी कॉन्फ्रेंस ये PHEC के साथ मिलके कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इसका स्कोप भी एक्सपेंड हुआ है, और इन कॉन्फ्रेंसेस के नतीजे में जो हमने अवेयरनेस क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं अमंग एकेडेमिया और हायर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के इदारों में, तो पहले मेरा ख्याल है पिछले 3 सालों का अगर हम देखें तो इसमें बेहतरी आ रही है। और इस दफ़ा आपका जो क्लाइमेट का भी इसमें सेशन जिसको मैंने मॉडरेट किया, इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी। तो मुझे खुशी हो रही है कि वो जो पौधा हमने लगाया था वो अच्छा फल फूल रहा है। थैंक यू।